So in this website of electronics engineering for the odd semester 2022, first is your academic calendar. As you are all are aware of that, for the first 4 weeks you are in the online mode, right? That is starting from your today only, 4th October to 29th of October. And you're supposed to join offline from the 10th of November till it will go up to, I suppose, 4th of January. Right. So in the online mode, we are going to take up your syllabus for the analog portion first. So in your syllabus, we have two distributions. One is analog electronics. Let me show you syllabus first. This is the syllabus. So first is semiconductor devices. Then we are having electronic devices and circuits. Then operational amplifiers. These three are the part of your analog electronics. And in condition to this, we do have some digital portion, that is digital systems and binary numbers, then combinational and sequential logic. Right. So this is your entire syllabus of UEC 001, which I am going to cover in your lectures. Apart from this, let's have a look at the website. We are having an evaluation scheme. I suppose it's there. Let me check. Yeah. So this is a evaluation scheme for you, this course. This course is a lab component course, right? So for this, lab is carrying 20 marks. Written test, which is at the end, it's 60 marks, and 20 marks are for your sessionals. Maybe some quizzes are there. So this is total 100 marks. Then regarding your tutorials and lab work, you can just go and click on this home button. There is lab, tutorials, and e-content. Right. So suppose I click on the e-content. So you can see analog part and digital part. So for analog part, if you click on this, it will just drag you to the place for where you are having a different links for the different topics. You can see there are a number of topics, right? So there is just for every topic there is a pre-recorded lecture, right? So एक तो आपकी recording अभी हो रही है, वो भी हम डालेंगे LMS के ऊपर. Plus, if you are interested in any of the topic to study beforehand or later on also, you can have just a click on that, right? तो ये सारा आपका syllabus already e-content की form में हमने आपको provide किया हुआ है. सर थोड़ा scroll करेंगे ऊपर में. हाँ बिल्कुल. Can you please scroll up? Yes, I have done it. The screenshot of the syllabus of electronics engineering. No need to take screenshot. I have just shared a link in the chat box, right? That is a link for the website. You can open it from your side only. There's no need to take screenshots. Okay, sir. Got it? So just open the chat box, open the link. That's why I've given the link first. Okay. ये सारा का सारा syllabus है आपके पास. First electronics वाला analog वाला part है सारा. Then we're having afterwards ये analog वाला portion था. If I go to digital one, this is a digital part syllabus. So again go there. So there are 40 lectures for the analog. These 40 is a small lectures. It's not a 1 hour lecture, small lectures, right? And these approximately 36 lectures are there for the digital portion. So this is the pre-recorded without any interruption in the lectures, right? Now, apart from this, regarding your tutorials and lab, if you go to tutorials, here we can find tutorial every week. So like for this week, this is a tutorial number 1. So whenever you are having tutorials in your timetable, whatever the teacher comes, he or she will do this tutorial with you, right? So these are 4 questions for that. Then regarding lab portion, if you go here, this is a lab. Here again, digital part lab, analog part lab. So some groups might be doing the digital experiments first, some might be doing analog experiment first, and then later on they will swap, right? So these are the different lab experiments. Now, for today's topic, we will be focusing on the syllabus first. Right, sorry. So let me go back and open the detailed syllabus. Now, regarding this syllabus, are you aware of the credit system here? Yes, sir. No, sir. No, sir. Partially, yes, sir. चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एनी सेमेस्टर कि आपने सीजी कैसे अटेंड करनी है, क्योंकि अल्टीमेट टास्क आपका ये है कि लर्निंग भी है प्लस सीजी अटेंड करना है आपने, है ना? तो उसके लिए क्या होता है,
Let me share the screen. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So UEC 001 is it's LTP. LTP stands for lecture, tutorials, and practicals. Right? This is 3-1-2. Means 3 hours. 3 hours per week lecture, 1 hour per week tutorial, and 2 hours per week lab. Right? And this UEC 001 is carrying a credit of 4.5. अब इसका मतलब क्या 400 क्रेडिट का मतलब? तो अब आपको बताता है कि यहाँ पर मान लो आपने एग्जाम दिया आउट ऑफ 100, जैसे आपको मैंने दिखाया था स्कीम में, यू आर हैविंग 20 मार्क्स फॉर सेशनल्स, देन यू आर हैविंग सम मार्क्स फॉर द लैब, देन यू आर हैविंग अ रिटन टेस्ट. तो आपका जो स्कीम है वो ये स्कीम है फॉर दिस UEC 001. तो अब टोटल 100 मार्क्स बन गए. सो एट द एंड सपोज यू आर गेटिंग 85. Let's take an example. ठीक है, it's not fixed. It can be 80 also. कुछ भी हो सकता है. And suppose the highest marks are, let's say, 86. Right? अब जो आपकी मार्किंग स्कीम है ना बच्चे, that is a relative grading. What it means कि अगर एक क्लास के अंदर क्लास एक सब्जेक्ट के अंदर आता है, जैसे आपका UEC 001 है, ये सारी ब्रांचेस पढ़ रही हैं एक्सेप्ट COE एंड ENC, वो नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर मान लो आपके पूरे स्टूडेंट मिला के 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज करो, लेट्स टेक एग्जांपल, ये 1000 स्टूडेंट्स हैं आपके पास. ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फिक्स नहीं है. तो 1000 स्टूडेंट में से सपोज करो हमने सबकी मार्क्स एक एक्सेल फाइल बना ली एंड देन वी अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स. तो हाईएस्ट 86 है, फिर 85.99 है, फिर 5 है, कुछ भी आ रहा है, ऐसे कंडीशन चल रहा है. अब we will make a bunch of students and we will allocate them grade A. अब ये भी हो सकता है कि A जो कट ऑफ लग रहा है, it may go up to 78, 76, 75, 73, depending upon the number of students and depending on the relative gaps between them. Because gaps क्या होता है, इसमें पता है गैप का मतलब कि मान लो A के 75.33 है, A के 75.43 है, तो दोनों में 0.1 का गैप है. तो आपका जैसे कोर्स है 1000 स्टूडेंट्स का, तो देयर 0.1 मार्क इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको इस चीज की भाई क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जो भी क्रेडिट आपके 4.5 वाले क्रेडिट्स बड़े कोर्स हैं, इसमें अगर आप 0.1 का भी लेके डिफरेंस रखते हो, तो 0.1 से ग्रेड कट का हो रहा है आपका, तो आपकी CG बहुत फर्क पड़ जाती है उससे. कैसे फर्क पड़ती है वो मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से. सपोज मैंने कहा आपके 85 मार्क्स आए और हाईएस्ट 86 थे एंड यू फॉल अंडर A कैटेगरी. ठीक है, तो क्या होगा, 10 आपका मार्क है फॉर द A ग्रेड, 9 होता है फॉर A नेगेटिव, B के लिए 8, B नेगेटिव के लिए 7, C के लिए 6, C नेगेटिव के लिए 5. इस तरह से चलता है आपके पास. तो आपको इनमें से कोई ग्रेड लेना है, कोशिश करो कि अपर एंड वाला ग्रेड ही लो, है ना. तो जो हमने ग्रेड लिया किसी भी सब्जेक्ट में, बता रहा हूँ जनरल बता रहा हूँ आपको, तो दैट ग्रेड मल्टीप्लाइड विद द क्रेडिट फॉर दैट कोर्स. अब आए थे हम इसके ऊपर कि सपोज मेरे पास सब्जेक्ट थे A, B, लेट्स से A1, B1, C1, D1. सपोज आपके 4 कोर्सेज हैं. आपने पहले वाले में अटेन किया A, दूसरे में अटेन किया आपने B, तीसरे में मान लो A नेगेटिव, फोर्थ में अगेन B. अब मान लो सब्जेक्ट A का क्रेडिट था 4.5, 3, 4.5, लेट्स से 4. तो अब आपकी 4 कोर्सेज थे मान लो इस सेमेस्टर के अंदर, और चारों में आपने कुछ ग्रेड अटेन किया बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. नाउ व्हाट विल बी योर CG स्कोर फॉर दैट. तो कैसे निकालेंगे, ये A का मतलब 10 है, 10 into 4.5 प्लस B का मतलब क्या है 8, 8 into इसका ग्रेड कितना कोर्स का मान लो 3 है, प्लस A नेगेटिव का मतलब क्या 9 into 4.5 प्लस B क्या 8 into, ये सब निकालेंगे, डिवाइड किससे करेंगे बताओ, तो किससे डिवाइड करेंगे, Sum of credit. Sum of credit. सम ऑफ क्रेडिट कितने हैं देखो, 4.5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13,
13 + 3 16। अब निकालो फॉर एग्जांपल लेके जाते हैं 45 + 24 प्लस देन 5 4 36 40.5 प्लस 32 डिवाइड बाय 16। अरे निकालो को कैलकुलेटर से फटाफट, क्या आया बताओ मुझे। $69 109.5 सर 8.84। 8.84। 84। तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की सीजी ये बन गई, ठीक है। अब मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये अटेन किया, अब सेकंड सेमेस्टर में भी आपने ऐसे निकालना सेम तरीके से। सेकंड सेमेस्टर मान लो आपने किसी आपकी मान लो कम आ गई, सपोज करो 7.36 आ गई सपोज, तो ये तो सेमेस्टर 1 की थी सीजी, ये सेमेस्टर 2 की थी। अब ये दोनों ऐड होंगी और क्या होगा, डिवाइड किससे होगा, 2 से। तो अब यहाँ पर मेरे को बताने का क्यों जरूरी था आपको कि जो आपकी पहले सेमेस्टर की सीजी है उसका डिनोमिनेटर कितना है 1, क्योंकि आपने 8.84 निकाला, डिवाइड बाय 1 ही है, वो तो 8.84 ही है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर जब सीजी आपकी आई तो वो ऐड होकर डिवाइड बाय 2 होगा। तो इट मींस जैसे जैसे आप डिग्री के अंदर एंटर करते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, डिनोमिनेटर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब देखो एग्जांपल, सपोज करो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपकी सीजी 7 थी, सपोज करते एग्जांपल। अब थर्ड ईयर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड यू गॉट सपोज एक में 8 आया, सेमेस्टर में अगले में भी 8 आया, तो अब नेट कितनी बन जाएगी, कितना इफेक्ट पड़ेगा इस 8 का। 7 आपने फोर्थ सेमेस्टर में अटेन की, इट मींस 7 4 is 28 plus 16 divided with 6 coming out to be how much, 44 by 6, 6 7 is 40 20। तो आप ये देखो कि 7 से 7.3 करना कितना डिफिकल्ट होगा आपकी, जबकि आपने 8 अटेन किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शुरू के आपके सेमेस्टर्स हैं उसमें आपने अच्छा सीजी अटेन करना है पहले। अगर पहले से अच्छा रहोगे तो डिनोमिनेटर चाहे बढ़ भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक जो मेरा पॉइंट है बताने का वो आपको क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. मेरा एक Yes, sir. सवाल है हाँ जी, सर, I have a doubt. बोलो बोलो। I was talking that if the questions are too easy to answer, then the CGP, then according to the number, the CGPA will be very high. No. Listen, if suppose paper is very easy and out of 100 suppose I am getting 90 marks and within 90 to 87 out of 1000 students, suppose there are 800 students, let's take a very upper mark, तो it doesn't mean कि 800 को ही A मिल जाएगा। Getting my point? It is not like that कि आपके मार्क्स कितने हैं, ये मैटर क्या करता है कि रिलेटिवली आपके लोगों के मार्क्स कितने हैं। इट्स अ रिलेटिव ग्रेडिंग। पहले तो आपका होता है प्लस 2 में कि आपने मार्क्स लेने की 95% तो 95% आपके आ गए, यहाँ परसेंटेज नहीं है ना, यहाँ तो कट लगना है, ए नेगेटिव है। मतलब CGPA मतलब जो परसेंटाइल हम बोलते हैं, तो अभी यस तो आपका यहाँ पर कहने का मतलब ये कि जो आपका सीजी है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने ग्रेड क्या अचीव किया है। मान लो एक बच्चा है उसके 78 मार्क्स थे, एक बच्चा है मान लो उसके 85 मार्क्स थे, दोनों का सेम ग्रेड लगा मान लो बी, तो बोथ आर इक्वल। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, चलो अब आते हैं हम वापस के कोर्स के ऊपर। तो हमारा ये जो कोर्स है ये 4.5 क्रेडिट्स का है। मैक्सिमम क्रेडिट एक कोर्स में 4.5 ही होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स कोर्सेज। जो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स होते हैं उसमें ज्यादा होता है, लेकिन जो थ्योरी वाले कोर्सेज हैं उसमें 4.5 इज अपर लिमिट। ठीक है, तो आपने जो लैब वाले कोर्सेज हैं खासतौर पर उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन पे करनी है, क्योंकि लैब में जो मार्क्स हैं आपके
20 मार्क्स लैब के ऐड हो रहे हैं बीच में, है ना। चलो अब आए थे सिलेबस के ऊपर। तो अब सिलेबस में हम जरा थोड़ा डिटेल देखते हैं कि आज से मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, पढ़ाना हम कैसे स्टार्ट करेंगे आप टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आप लोगों ने प्लस 2 तक पढ़ा होगा पीएन डायोड, पीएन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। सर 12 में पढ़े थे हाँ जी, सर, हम 12 में पढ़े थे। हाँ पढ़े थे ना। 12 में। हाँ बिल्कुल, वही आप आपने Yes, रिपीट sir. करना है इस बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर आपके पास बच्चे अभी भी आ रहे हैं। तो हमारा जो पीएन डायोड है, ये देखिए स्क्रीन मेरी आपको सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो पीएन Yes, डायोड sir. आपने Yes, पढ़ा sir. होगा। पीएन डायोड में क्या होता है, इस तरह का सिंबल आपने पढ़ा होगा पीएन डायोड का, है ना। तो यहाँ पर एक एनोड होता है, एक होता है कैथोड, है ना। तो अब ये पीएन डायोड किसका बना होता है, पी और एन का। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, पी मीन्स व्हाट। Sir, P is the semiconductor where there Yes. is excess holes. Yes, so this is a p-type semiconductor and this side is n-type semiconductor. तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला कि होल्स हमारे पास एक्सेस में होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, है ना। तो जब हम इसको आपस में पास लेके आते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी को पता है, एनी एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। चलो आपके पास एक मान लो परफ्यूम की बोतल है, ठीक है। अब वो परफ्यूम की बोतल क्लोज है, कोई स्मेल नहीं आ रही, मैंने उसका ढक्कन ओपन किया, उसको स्प्रे किया, तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स थ्रू आउट द रूम स्मेल हो जाएंगे पूरे। तो आपको स्मेल सुनेगी उसकी, व्हाई, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर डिफ्यूज इन द एनवायरनमेंट। सिमिलरली हियर व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ पी टाइप विद अ एन टाइप, तो यहाँ पर होल्स मेरे जो से मेजॉरिटी में या इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, सो देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। So due to this concentration gradients, holes start moving from this side to this side and electrons from this side to this side. So to make it neutralize. So once the carriers get diffused of their own, see I am not applying any of the biasing yet, right? तो जो carriers due to concentration gradient move कर रहे हैं, वो move कर रहे हैं। एक चीज आएगी जब क्या होगा, there will not be any further movement, है ना। तो बीच में एक लेयर बन जाती है इमोबाइल आयंस की। अब क्या हो गया कि जो मेरे पास होल यहाँ पर वो यहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो यहीं रहेंगे, बीच में हमारी जो लेयर बन गई ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है, हमारे पास इमोबाइल कैरियर्स होते हैं। इमोबाइल का मतलब क्या है, जो अपने आप नहीं मूव कर सकते। फिर आपने पढ़ा होगा कि डायोड को हम बायस देते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, है ना। तो फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं कि पी पे क्या लगाओ, पॉजिटिव। सर उसका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एंड से, बैटरी का पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देते पी टाइप को। बिल्कुल ठीक बात बोली। और एन से नेगेटिव, तो ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये पढ़ेंगे डिटेल में। अगर इसका उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। तो इफ आई डू इट लाइक दिस, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है, एंड आई एम कनेक्टिंग इट लाइक दिस, सो इट मेक्स द डायोड इन रिवर्स बायस। तो आपने ये भी पढ़ी होगी कि आपका जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट हमारा फ्लो करता है ना। Yes, sir. किस डायरेक्शन में करता है फ्लो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। It is either this side or this side. Left to right. Left to Left to right. right. This is the correct. Left to right. हाँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट में हमारा करंट फ्लो करता है, और जब होल जिस डायरेक्शन फ्लो करता है वहीं पर हमारा करंट फ्लो करता है। सो कन्वेंशनल फ्लो क्या है, फ्रॉम P to N, एंड फॉर रिवर्स बायस करंट फ्लो करता है Right to left. Right to left. राइट टू N to P. N to P। ये क्यों फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट minority charge carrier. Minority charge वेरी गुड। हाँ, तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हमारे पास रिवर्स करंट फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और समटाइम्स वी कॉल इट एज लीकेज करंट, है ना। तो ये रिवर्स करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज। तो हम जो पहला चैप्टर है आपके पास सिलेबस के अंदर, उसमें क्या है, यही है कि पी एन डायोड कैसे काम करता है, आइडियल डायोड क्या होता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डायोड के, डायोड का अगर डायोड को हमने एज अ मॉडल रिप्रेजेंट करना है तो उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल। अलॉन्ग विद दिस वी डू हैव अ ज़ीनर डायोड। ये क्या होता है ज़ीनर डायोड? सर वो एक तरह का रिवर्स डायोड है जिसका वोल्टेज रेगुलेटर। यस, मतलब जिसका ब्रेकडाउन होता Correct, ही है। works and breakdown voltage. बिल्कुल। ये बताओ ये ज़ीनर डायोड की रिक्वायरमेंट क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन क्यों करनी है हमें? Why you want to regulate the voltage? Anyone? Okay, let me give you To prevent avalanche breakdown. avalanche breakdown. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि what is the need for voltage regulation? करंट को यूनिफॉर्म रखने के लिए Yes. Why we want to come to uniform? अप्लायंस के लिए जरूरी है। Yes, very good. जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, आप यहाँ पर लैपटॉप लगा रहे हो, डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो, या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, हर एक के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। So voltage regulatory circuit is always there inside this. पहले क्या होता था प्रीवियस जनरेशन में, एक्सेप्ट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर एक जगह पे स्टेबलाइजर लगे होते थे। टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर रखो, फ्रिज के ऊपर रखो, अपने वॉशिंग मशीन के साथ, हर एक जगह आपका स्टेबलाइजर यूज होता है। अब क्या हो गया, सब कुछ इनबिल्ट आ गया, स्मॉल आईसी की पैकेज की फॉर्म में आ गया। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है, इसका मतलब क्या है कि वी वांट अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ करंट टू एंटर इन आवर डिवाइस, बिकॉज जो हमारा डिवाइस है, अगर इसमें फ्लक्चुएटिंग करंट या वोल्टेज आया तो इट इज गोइंग टू डैमेज द डिवाइस, ये बर्न आउट हो जाएगा। तो हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह भी आप देखो, इसका चार्जर लगाते हो आप, है ना, तो आप कहते हो चार्ज, इसकी चार्जिंग करें। चार्जिंग का मतलब क्या है कि वी आर चार्जिंग द डीसी सप्लाई वोल्टेज, जो आपकी डीसी बैटरी लगी है यहाँ पर, वो चार्ज कर रही है। तो आपका जो अडाप्टर है वो करता क्या है, प्लग से उठाया आपने एसी और दिया आपने डीसी, तो एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर रहा है वो। तो अब जब एसी डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट करने के बाद उसको रेगुलेट भी करता है वो। तो रेगुलेट के लिए हम यूज करते हैं ज़ीनर डायोड, और ये रिवर्स बायस में यूज करते हैं इसको। तो हम इसमें पढ़ेंगे जब आप कहेंगे कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर मान लो मेरा ये कोई सर्किट है, उसके आउटपुट की ओर मैंने मान लो कुछ लोड लगा दिया। अब ये लोड, इट मे बी योर फैन, एसी, राइट, ट्यूबलाइट, एनीथिंग इट कैन बी। सो जब भी आप चेंज कर रहे हो अपना लोड, तो आपकी डिवाइस डैमेज नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन। तो अगर मैं आउटपुट लोड को इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, विद दैट माय आउटपुट शुड बी स्टेबलाइज्ड, रेगुलेटेड हुआ। सो दैट इज द रोल ऑफ ज़ीनर डायोड। तो ये हम पढ़ेंगे ज़ीनर डायोड को डिटेल के अंदर। देन इज योर नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। सो इसमें आपको मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, रेक्टिफिकेशन, अपने लैपटॉप का चार्जर या मोबाइल फोन का चार्जर, दीज ऑल चार्जर्स आर लाइक योर रेक्टिफायर्स व्हिच आर कन्वर्टिंग योर एसी टू डीसी, ठीक है। देयर इज योर क्लिपर एंड क्लैंपर। ये नाम सुना है पहले आपने, क्लिपर क्लैंपर कभी? नो सर। ओके, No, क्लिपर का मतलब क्या है, तो क्लिप समथिंग। क्लिपर मींस कुछ काटना है। मान लो क्या काटूंगा मैं, देखो जरा, सपोज मेरी इनपुट सिग्नल आ रहा है कहीं पर, ये साइन वेव आ रही है सपोज, ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरे को तो ना सिग्नल ऐसा चाहिए कि इसकी ये वेवफॉर्म यहां से कट हो जाए, जो मैंने शेड किया कट हो जाए, है ना। तो कट हो जाएगी तो कैसी बनेगी, इट विल लुक लाइक, तो अब ये वेवफॉर्म मैं कहां से लेके आऊं भाई, ऐसी वेवफॉर्म मेरे को आती नहीं है। तो फॉर दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म आई कैन गो फॉर क्लिपर्स। अब क्लिपर्स जरूरी नहीं कि यही काटते हैं, इट कैन गिव आउटपुट लाइक दिस आल्सो, it can give output like this also, it can give output like this also। तो मेरी इनपुट सिग्नल ये था, इससे ये भी आ सकती है आउटपुट, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो अब जो क्लिपर्स है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखो कि इस वाली वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म नंबर 1 पे मैंने क्या काटा, नेगेटिव पोर्शन, तो इसको बोलूंगा इट्स अ टाइप ऑफ नेगेटिव क्लिपर। तो ये पहले आज याद कर लो कि नेगेटिव क्लिपर का मतलब क्या है, जो मेरे सिग्नल की नेगेटिव पार्ट को कट कर रहा है, ठीक है। अब ये वाले पे आए थे, नंबर 2 पे आए थे, सपोज करो अब 2 में क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोर्शन कट रहा है, बाकी पूरा आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव
क्लिपर। ये पॉइंट क्लियर हुआ को नहीं हुआ किसी को? नेगेटिव कट रहा है तो नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव कट रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर। अब आए थे वेवफॉर्म नंबर 3। हाँ बोलो सर नोट करने दीजिए सर, हैं? क्लिपर और क्लैपर का जो डायग्राम्स आपने किया है वो थोड़ा ड्रॉ करने दीजिए। अभी मैंने डायग्राम कोई ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ वेवफॉर्म्स बनाई है। वेवफॉर्म दिख रही है आपको यहाँ पर? सर तो ये एक तरीके से सिर्फ आउटपुट वोल्टेज को लिमिट करता है ना? आउटपुट वोल्टेज हम बिल्कुल लिमिट करता है कि उसकी कितनी पॉइंट तक मैंने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद उसको रिजेक्ट मार देना। अच्छा, हमें नोट्स बनाने हैं क्या? हाँ जी, अच्छा, हमें नोट्स बनाने हैं, प्रोवाइड हमें नोट्स बनाने हैं। या पीडीएफ में जाओ। नोट्स बनाने नहीं बनाने वो आपके ऊपर है। देयर इज नो कंपल्शन एज इट इज, बिकॉज द एंटायर ई कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये तो आज मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ, एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ रिगार्डिंग योर सिलेबस। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ सिस्टम होगा इसका नोटबुक्स का? नोटबुक का कोई सिस्टम नहीं होता है ऐसा, स्कूल में होता है वो सिर्फ। कॉलेज के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जैसे बनाना है आप बनाओ, अपने एंड पे कोई इश्यू नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। आपने अपने नोटेड। वीडियो देखना है वीडियो देखो आप, जो अभी लेक्चर चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप जब मर्जी देखो उसको बैठ के, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है, ये मुझे बताओ किस टाइप का क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑल एग्री विद दिस? Yes sir, positive. Yes sir. यस सर। गलत है। यस। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ? आपका जो वेवफॉर्म है इसका नीचे वाला पोर्शन कट हो रहा है भाई, ऊपर तो आ रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव क्लिपर। ये मैं जान के पूछ के बनाया है ताकि आपको पता लगे कि क्या मतलब है। आपको समझा दो ये कैसे हुआ? देखो, जब आपका इनपुट सिग्नल जो भी आ रहा है, मान लो ये इनपुट सिग्नल था और ये सपोज करो मैंने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में डाल दिया, सारा नेगेटिव में ही है ना। अब अगर कोई पूछे कि आप ये इसकी आउटपुट मान लो सपोज करो मुझे चाहिए ऐसी, ये ऐसे जाए, तो जो ब्लू बनाई है मैंने, ब्लू इंडिकेट्स आउटपुट, रेड इंडिकेट्स इनपुट। तो इनपुट के ऊपर से वाला पोर्शन मैंने क्लिप किया ना, अपर पार्ट क्लिप किया तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव क्लिपर, लोअर पार्ट क्लिप किया तो नेगेटिव क्लिपर। तो ये दिमाग में रखना है बस, आपने कभी गलती नहीं होगी आपकी इस तरह की। और ये आपको और बता दूं, क्लिपर क्लैंपर का 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। और आपकी प्लेसमेंट में भी आप बैठोगे तो आपको कोई ना क्वेश्चन पूछेंगे डाउट का, तो क्लिपर क्लैंपर ही पूछते हैं। तो माइंड में ये चीज बिठा लो कि क्लिपर का मतलब कुछ क्लिप करना, और जब पॉजिटिव क्लिप है तो उसने इनपुट के अपर पार्ट को क्लिप कर देना। कुछ अपर पार्ट कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी इन द पॉजिटिव, इट माइट बी द नेगेटिव आल्सो। अगर लोअर पार्ट क्लिप हो रहा है तो नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर फिगर नंबर 4, वेवफॉर्म नंबर 4, ये कौन सी क्लिपर है बताओ? पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव पॉजिटिव। यस, क्लियर है? यस सर। यस। आपको इसका थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज और नहीं करा है। तो अभी सपोज करो हमने अभी जो डायोड पढ़ा था उस डायोड को ले लेते हैं, जैसे म्यूट कर लो। ये आपके पास इनपुट है, सपोज दिस इज +5 वोल्ट्स -5 वोल्ट्स, ठीक है। और अब मुझे बताओ कि ये डायोड कब काम करेगा, पॉजिटिव में करेगा नेगेटिव में करेगा? अगर ये आइडियल डायोड है, सपोज कर लेते हैं। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है पता है? Positive. VD = 0। पॉजिटिव 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 में पॉजिटिव में कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर मेरे को वोल्टेज क्या मिलेगी? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। और नेगेटिव पे? नेगेटिव पे 0। 0 सर 0। तो ये आपका सर्किट पता है किसका बन गया? कौन सा क्लिपर बना? पॉजिटिव क्लिपर नेगेटिव क्लिपर? पॉजिटिव पे ही काम करेगा। नेगेटिव। गॉट इट? अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, ये लो आपका टॉपिक करा दिया मैंने अभी आपको। अब ये क्या बनेगा? आउटपुट क्या आएगी सेम इनपुट के लिए? -5 सर नीचे को आएगी। फर्स्ट हाफ में क्या आएगा? 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? फर्स्ट हाफ में 0 आएगा, सर 0 क्यों आएगा? फिर नेगेटिव फर्स्ट आएगा। हाफ में आपका यहाँ पर +5 लगाओगे जब आप,
तो डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस। Yes, yes, sir. Reverse bias. तो रिवर्स बायस अगर आइडियल डायोड है तो क्या होता है, डायोड एक्ट एज ओपन स्विच, Yes, sir. तो करंट विल बी 0। Okay, sir. यहाँ पर आपका, तो ये कौन सा बन गया आपका, पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, तो ऐसे हम डिटेल में करेंगे। ये आपका सीरीज क्लिपर है, शंट क्लिपर भी होता है। अब ये अनबायस्ड है, बायस्ड वाले भी करेंगे, तो दिस विल डू इन डिटेल। जस्ट आपको बताने के लिए फ्लेवर कि जो हमने वेवफॉर्म्स बनाई है ये सारी की सारी, जैसे ये बनाई, तो ये हमारी बायस्ड क्लिपर की वेवफॉर्म्स है, तो ये हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखो, ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन सर थोड़ा ट्रांजिस्टर। बायस्ड क्लिपर का स्लाइड दिखाएंगे आप? बायस्ड क्लिपर तो मैंने करवाया नहीं, बायस्ड क्लिपर की वेवफॉर्म बनाई है मैंने यहाँ पे। ये जो फिर बताया था ना और आपको, ये वाले, और एक सर्किट डायग्राम के साथ है ना, हाँ ये वाला, ये ये वाला। अनबायस्ड है। ओ अनबायस्ड। हाँ, बायस का मतलब क्या होता है पता है, बायस का मतलब ये कि मान लो अगर इसी डायोड के साथ मैं एक बैटरी भी लगा दूं, चलो आपने कह दिया तो ये भी करवा देता हूँ आपको। ये +5 है, मान लो ये -5 है, और ये बैटरी मान लो 2 वोल्ट्स की है। अब मुझे बताओ कि आउटपुट क्या आएगी। सर फर्स्ट वाला, सर फर्स्ट हाफ 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा, फर्स्ट फिर 0 नेगेटिव होगा। होगा, 0 होगा। नहीं, वैसे चलो मैं अभी चाहता हूं कराना आपको। देखो ध्यान फर्स्ट से, वाला सिर्फ 3 का आएगा ऊपर से, फर्स्ट वाला 3 तक आएगा। नहीं, पीक वोल्टेज कितनी आएगी, तो 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स। कब से आएगी, किस पॉइंट, यहीं से स्टार्ट कर दो तुम, ऐसे कह रहे हो? सर हाँ 3 वोल्ट ये कह रहे हो? yes, sir. ऑल एग्री विद दिस? Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, ये sir. गलत गलत है ये। ये कैसे गलत है, देखो ध्यान से, आपके पास जो इनपुट है, इनपुट तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप नानी। जब आपकी इनपुट मान लो आपने 1 वोल्ट लगाया, सपोज करो, क्योंकि सिनोसाइड सिग्नल है ना, 0 से 1 2 3 4 5 जाएगा। जब मैंने 1 वोल्ट लगाया तो ये डायोड काम करेगा? नहीं सर। नहीं। 2 वोल्ट पे? नहीं। नहीं। तो इट मींस जो मेरा ये, अगर मैं इसी पे बना के दिखाऊं आपको, जो आपकी यहाँ पर 1 से 2 तक ये आपके आउटपुट क्या है, 0। कंडक्शन कब स्टार्ट होगी, आफ्टर 2 वोल्ट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस साइड पे ये +2 लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर +3 वोल्ट आ जाएगी या 2 भी आ जाएगी आइडियल डायोड, तो ये कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मींस माय आउटपुट विल बी लाइक दिस। जो हमने ये बनाया था ना पीछे, हाँ जी सर। Yes. ये वाला, नथिंग टू वरी। आपने वैसे पूछा बायस, तो मैंने बता दिया, ये हम करेंगे डिटेल में सारा का सारा, नथिंग टू वरी। हमारे पास ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें डिफरेंट डायोड कभी यहाँ रख दिया, कभी ऊपर रख दिया, कभी नीचे बैटरी लगा दी, नेगेटिव लगा दी, पॉजिटिव लगा दी। देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स फॉर दैट, वी विल डू इट डिटेल। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारे पास बीजेटी का। बीजेटी इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब जैसे डायोड में आपने कहते हैं पीएन डायोड पढ़ा था ना आपने, तो इसी तरह यहाँ पर क्या है, 3 होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। जो सेम है वो एक्सट्रीम में ही है, दूसरे बार बीच में होगा, या पीएनपी होगा या 2 एन होंगे, बीच में सैंडविच लेयर पी होगी। तो ये सैंडविचिंग होती है 3 लेयर्स की, जिसमें 2 सेम वाले ऑपोजिट साइड्स पे सिमिलर, जो डिफरेंट है वो बीच में, आइदर इट कैन बी पीएनपी और एनपीएन। तो इसके 3 टर्मिनल्स हैं, यहां बोलते हैं एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। सिमिलरली हियर आल्सो एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। राइट, तो आपका जो यहाँ पर जंक्शन है, देयर आर 2 जंक्शन, J1 एंड J2। एक होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन, एक होता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। राइट, तो जो आपका ये ट्रांजिस्टर है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रेजिस्टर।
तो ये आपकी रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर है। अब रेजिस्टेंस ट्रांसफर का मतलब क्या है, लो टू हाई करेगा या हाई टू लो करेगा, है ना। तो आपका जो ये बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें जो करंट है बाइपोलर यहाँ पर क्यों हो रहा है, बिकॉज करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी। और इसका सिंबल आपके लिए ऐसा होता है, जो ये एरो होता है, जिस साइड पे एरो लगा है उसको बोलते हैं एमिटर टर्मिनल, उसके ऑपोजिट वाला कलेक्टर और बीच में बेस। या ऐसा होगा या ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको डायोड का सिंबल याद है, डायोड का सिंबल ऐसा होता है ना, यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर एन होता है। तो जो एरो है ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है, एन की तरफ, है ना। इट्स लाइक एरो कि पी से स्टार्ट हुआ एन की तरफ गया। तो यहाँ पर भी ये सेम रोल है इसका। अगर ये एरो की आपने डायरेक्शन देखनी है, एरो अगर पॉइंट कर रहा है ई की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, ये एन साइड है और यहाँ क्या है, पी है। इस केस में एरो इधर है तो ये एन साइड है, ये क्या है, करंट फ्रॉम पी टू एन फ्लो करेगा, एन टू पी नहीं आता, है ना। तो पी टू एन जा रहा है। अब अगर ये एन है और ये पी है, तो तीसरी लेयर कौन सी होगी बताओ, एन। एन। और यहाँ पर ये पी है, ये है ना, तो ये क्या होगा, P. तो ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया, ये मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया, सिंपल। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे इसका कि कंस्ट्रक्शन कैसे, पीएनपी बनता कैसे, एनपीएन कैसे बनता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। फिर हम इसकी क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, उसका बिहेवियर। ठीक है, तो कुछ इसमें जब बनाते हैं, क्योंकि 3 टर्मिनल्स है इसके अंदर, तो इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। एक होता है कॉमन बेस, दूसरा कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, और तीसरा कॉमन कलेक्टर। 3 टर्मिनल, तो तीनों को एक कॉमन कर दिया। ठीक है, ये बताएंगे कि कॉमन का मतलब क्या है, कि व्हाई वी आर डूइंग इट कॉमन, क्योंकि हम इसको रिलेट करते हैं विद 2 पोर्ट नेटवर्क। तो वहां पर हम सर पढ़ेंगे आपको। सर क्योंकि जो बेस है वहां से जो वायर जो जा रहा है वो ग्राउंडेड है, इसीलिए उसका नाम है कॉमन बेस। अभी देखो, अभी जो हमने कॉमन बेस, कॉमन एमिटर की हमने कन्फिगरेशन नहीं पढ़ी, ये जो आपको बताया मैंने, ये सिर्फ सिंबल है। ये जरूरी नहीं कि आपका बेस हमेशा ग्राउंड हो। कॉमन बेस जब होता है ना, कॉमन बेस का मतलब क्या होता है, चलो आपको इश्यू बता देते हैं। फिर से हम इसको यूज करते हैं एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है, कि एक इनपुट पोर्ट है जहां से हम इनपुट देंगे, और एक आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, तो जब हम इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए 2 पिन चाहिए, आउटपुट 2 चाहिए। तो टोटल कितने हो गए, 4 रिक्वायर्ड है, जबकि टर्मिनल हमारे पास है कितने, 3, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो हम करते हैं क्या, किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कॉमन बेस, तो बेस यहां पर भी आ रहा है, बेस यहां पर भी आ रहा है, और ऊपर इनपुट एमिटर बेस से दी, आउटपुट कलेक्टर बेस से दी। सिमिलरली इफ आई एम यूजिंग कॉमन एमिटर, तो क्या करूंगा मैं, एमिटर यहां भी होगा, एमिटर यहां पर भी होगा। जो चीज कॉमन आ गई ना, जैसे हम गेम खेलते थे कि मान लो 3 बंदे टीम बांटनी है, तो क्या करते हैं, कॉमन हो जाता है, यहाँ भी खेलेगा वहां भी खेलेगा, सेम गेम यहाँ पर। तो 3 टर्मिनल है, उसको यूज करना है, पर हमें चाहिए 4, तो अब एक कॉमन करते हैं, या बेस को कॉमन किया, या कलेक्टर को किया, या एमिटर को किया। तो जिसको कॉमन किया उसी के नाम पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो कॉमन एमिटर किया, तो एमिटर कॉमन है, ऊपर हम यहाँ पर बेस लगा रहे हैं, यहाँ पर हम कलेक्टर लगा रहे हैं। अगर मान लो कलेक्टर कॉमन कर दिया, तो इस तरह से हो जाता है, कलेक्टर यहाँ पर भी आ गया, कलेक्टर यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर बेस कलेक्टर से इनपुट आ गई और एमिटर कलेक्टर से आउटपुट। तो ये मेरा सीसी बन गया, ये मेरा सीई बन गया, और ये मेरा सीबी। ये हम पढ़ेंगे सारा डिटेल के अंदर, इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इसका सिंपल के साथ बना के देखेंगे कैसे आ रहा है आउटपुट। फिर इनके गेन होते हैं, जैसे कॉमन बेस है तो उसका गेन होता है अल्फा, कॉमन एमिटर का बीटा, इसका होता है गामा। तो गेन आपको पता है, गेन का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइडेड विद इनपुट, यही होता है गेन। तो हम तीनों गेन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे तीनों गेन्स में आपस में रिलेशन क्या है इनका, कि मान लो मुझे अल्फा गिवन है, ठीक है, तो बीटा निकालना है, बीटा कैसे निकालूं, अगर बीटा गिवन है तो अल्फा निकालना, तो कैसे निकालूं, या अल्फा से गामा, गामा से अल्फा, इन तीनों का आपस में रिलेशन हम पढ़ेंगे। आपको इसका भी न्यूमेरिकल जल्दी आप तक छोटा सा निकला है।
अल्फा बीटा गामा निकालो। तो ये आपके टॉपिक में है, जिसमें लिखा हुआ है देखो, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग, कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा गामा सर्किट्स। ठीक है, देन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपको, फिर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एज एन एम्पलीफायर। जो आपका ये ट्रांजिस्टर है ना, इसके ना जनरली हम दो एप्लीकेशन यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एन एम्पलीफायर और इट कैन बी यूज एज स्विच। तो एम्पलीफायर तो आपको पता है क्या मतलब है, कि अगर मैंने यहाँ पर मान लो एक एम्पलीफायर लगाया विद गेन ए, मैंने इनपुट दी x, तो आउटपुट क्या आती है, a टाइम्स x आती है ना। और स्विच का मतलब क्या होता है, आइदर इट इज ऑन और ऑफ। तो जब हम डायोड को सॉरी ट्रांजिस्टर के जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें ना हमारे पास 3 रीजन होते हैं। ये आपके मान लो आपके आउटपुट कट ऑफ रीजन, एक एम्पलीफाइंग रीजन और एक है सैचुरेशन रीजन। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे सैचुरेशन, इस साइड पे कट ऑफ, और तीसरा होता है एक्टिव। तो जब भी मेरे को ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कराना है, तो मेरे को ये अश्योर करना है कि मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो। अगर मुझे ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करवाना है, तो ऑन करने के लिए सैचुरेशन मोड में जाए, ऑफ के लिए वो कट ऑफ में जाए, एक्टिव में बिल्कुल भी मत जाए। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, मैं कैसे ट्रांजिस्टर को बताऊंगा कि तूने एक्टिव में है, तूने सैचुरेशन में है, तूने कट ऑफ में है? इट इज बेस्ड अपॉन द बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने डायोड पढ़ा था एमिटर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ऐसे ही ट्रांजिस्टर के अंदर भी जब हम करते हैं तो हम बायसिंग लगाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग, मींस सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं ताकि हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स कर पाए, सो दैट इट कैन प्रोवाइड अस द फेथफुल एम्पलीफिकेशन, कि अगर आप सिग्नल x का दे रहे हो तो आउटपुट आपका a टाइम्स x मिले आपको। तो उसके लिए हमें फोर्सफुली एक्टिव रीजन के अंदर ही ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट, क्वेश्चन पॉइंट, राइट। तो उस पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग द इनपुट सिग्नल। तो अब ट्रांजिस्टर में जितने भी हम ये बायसिंग करते हैं, बायसिंग का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या, कि टू प्रोवाइड द वोल्टेज, जैसे डीसी वोल्टेज, एसी हम डीसी बायसिंग बेस करते हैं। तो डीसी बायसिंग करने के बाद फिर जब इनपुट लगाते हैं तो अकॉर्डिंगली वो उसको। तो आपके सिलेबस के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर कि इन योर सिलेबस वी आर हैविंग दिस बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बायसिंग, ठीक है, and then transistor as a switch as an amplifier. Then along with this transistor we do have field effect transistors and its characteristics. तो अभी जो हमने ये पढ़ा ये सारा बीजेटी था। एक होता है आपका FET, FET is field effect transistor। तो इसके अंदर फर्दर आप पढ़ते हो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंदर फर्दर एन चैनल, पी चैनल पढ़ते हो, ये पढ़ेंगे सारा एन चैनल, पी चैनल। यहाँ पर एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस, ये सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये इसके टॉपिक में आएगा। देन वी आर हैविंग सीमॉस एज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या है, नॉट गेट वर्क, कि आप 0 दो बंद आएगा, बंद हो के 0 आएगा, लाइक दैट, ठीक है। देन वी आर हैविंग लॉजिक फैमिलीज, TTL, सीमॉस। अब आपने अगर याद हो, आपने शायद प्लस 2 में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स पढ़े होंगे आपने, है ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट वगैरह। तो Yes, अब sir. मान लो एंड गेट है, सपोज करो एंड गेट में आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू a डॉट b। ये बच्चे अभी तक आ रहे हैं क्या बात? हमारी क्लास कितने बजे तक है? 3:30 3:30 सर। 3:30। ये अगले बच्चे आने लगता है मुझे। ओके, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू a डॉट b है। अब इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करें? हमें लॉजिक तो पता है, टेबल पता है कि 0 0 पे 0 आएगा, 0 1 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 1 आएगा। This we all are aware of. But the question is how to implement this. So for that we do need a logic families. तो लॉजिक फैमिली यहाँ पर हमारे पास TTL, CMOS, डिफरेंट टाइप लॉजिक फैमिली, तो वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। Then we are having third chapter as operational amplifier circuits, op amps. So Sir, can you please tell the function of the logic family? What is the role in the logic gates of logic family? See, जो आपका ये AND gate का लॉजिक आपने बताया y is equal to a dot b, how to implement this? So for this we are going to use different logic family which contains transistors,
TTL stands for transistor logic. तो इसमें क्या होगा, there will be set of transistors, diode, resistors. तो हम लॉजिक फैमिलीज पढ़ेंगे जिसमें डिटेल में बताएंगे कि अगर आप ये सर्किट यूज करोगे तो इट विल एक्ट एज अ एंड गेट और अ नैंड गेट और अ नॉर गेट, राइट. तो किसी भी गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए वी डू रिक्वायर सम आईसी फॉर दैट. वो आईसी कैसे बनेगा, यूजिंग दिस लॉजिक फैमिलीज. तो वो लॉजिक फैमिली से वो जो सर्किट है वो हम इसको आईसी के अंदर एम्बेड करेंगे, देन योर सर्किट विल एक्ट एज अ एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, तो भी आप राइट. तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो देन वी आर हैविंग ऑप एम्प्स. ऑप एम्प्स में हम ऑप एम्प क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एंड उसकी एप्लीकेशंस. देन वी आर हैविंग अ डिजिटल पार्ट जो आपका बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले डिजिटल पढ़ा हुआ है, जिसमें आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, है ना, ये सारे नंबर सिस्टम पढ़ोगे. देन उनकी कन्वर्जन आप एक दूसरे से अंदर. फिर जो डिफरेंट गेट्स हैं उन गेट्स को यूज करके कैसे आपने सर्किट को इंप्लीमेंट करना है वो भी इसके अंदर. एंड देन वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल लॉजिक जिसके अंदर आप पढ़ोगे डिफरेंट कन्वर्टर्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, सिंक्रोनस काउंटर्स, ऑल दैट. ठीक है, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप बिकॉज़ नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. सो वी कंटिन्यू फ्रॉम द टुमारो फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस. तो आज जैसे आपको मैंने ओवरव्यू दिया सिलेबस के बारे में, ठीक है. सो लेट्स स्टॉप. Sir, please tell about the recommended book. Books basically for the analog part, it's Robert Boylston. It's there written in there. Boylston RL. Sir, And can you Morris repeat Mann it for if the you digital don't mind? part. Got it? Can you repeat? वापस बताना प्लीज. It's written on the syllabus. See, Boylston. Okay, sir. Boylston and M.M. Mano, Morris Mano. For the digital Sir? part. हाँ जी. First topic. सर एक ऑफ टॉपिक चीज पूछनी है सर. अभी टाइम टेबल में अगले में लैब का दिया हुआ है लेकिन लिंक नहीं है उसमें कोई. देखो लैब का दिया हुआ पर लिंक नहीं है. Yes, sir. तो आप ई टिकट रेस करो एक बार LMS पे जाके.